सीधे खड़े यस सर बाप की कोई इज्जत नहीं होती है चाहे आपका बाप राजीव गांधी क्यों Avinash was always there. He's one of the most, how would I say, accommodating directors I've worked with. Gave us the freedom and do how we wanted to do. Gave us that opportunity कि यार तुम कैसे करना चाहते हो, ये करना चाहते हो. Then there was Raj also looking over it. So I think we were in very good hands. Very good. As far as if I talk about Veer, I think he's got a bright future ahead of him. Many reasons. I think मेरे हिसाब से for anybody in this profession, be where you are, actor, director, and whatever, you have to be a good human being, and that's very important in this profession. Very well. And he is a very nice kid, a wonderful boy. He's got a bright future. He's one of those people that, as a director, I want to work with. I really want to, because I know it will be a stressful journey. So that's a very good thing. बाकी कितने बिगड़े हुए लोगों में जानता हूँ लोगों को. सर हमने ट्रेलर में देखा है शो के कि आप दोनों दो अलग अलग जनरेशन के लोग हैं, राइट? और साथ में आकर काम कर रहे हैं, जेनजी और मिलेनियल साथ में आ रहे हैं. जितने आपके अपने नगर मेरा पहली बार ही पढ़ते थे पीछे अब बेइज्जत करोगे मुझे. नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जितना हमने देखा है वो वेरी फन लविंग मस्ती टांग खिंचाई वाला. Was he bully on set for you? I think so. The only time I would probably feel bullied is when you would kill it in one take and I would take 10 takes. I would feel a little bullied. No, ये ना this is the problem. He would do it right, but वो एक actor का होता है ना, मैं शायद इससे अच्छा कर सकता हूँ, मैं इससे और अच्छा कर सकता हूँ, और मैं अपनी acting को उस स्टेज पर पहुँच गया हूँ, मुझे पता है मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता. But you know, I have to say this man on set like has been so generous to me. You know, I'll just share a small anecdote of our first day on set. When I came on set for the first day, Arshad sir was rehearsing some lines in front of the camera, and suddenly Avinash sir panicked. He's like, Arshad sir, ये आपकी position नहीं है, but actually ये आपकी lines भी नहीं है. You're saying Veer's lines. And Arshad sir is like, हाँ मैं वीर को ही दिखा रहा हूँ how to say that. And this is sort of the ethos he carried throughout. He improvised more for me than for his own character. I have boss इसके बाप के साथ काम करना मुझे. There was some love here also. No, he only shows love too when he works with Sanjay Dutt sir. मतलब ईरानी वर्स में तब से लेकर आज तक, I'm sure आपने ईरानी वर्स के अगले काम में अगली कहानी में काम किया. संजय सर को तो मिस किया होगा. कहाँ है वो इसमें भी यार, तुम मिस करेंगे. बता दिए करो क्या बोल रहे क्या नहीं. ये बात बतानी नहीं थी. बंदी हो कट कर देना है ना, हटा देना. प्रेस वाले काटते थोड़ी जोड़ते हैं. नहीं पर इसमें पता तो चल गया है, but I don't know whether we're supposed to talk about it more or not. नहीं, no, we're not supposed to talk about it. अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो अलग जनरेशन जेनजी वाले लोग बैठे हुए हैं? Can you see hands? There are some people there. सिर्फ 3 ही लोग हैं. हाँ, आप बाहर चले जाइए. जेनजीज और मिलेनियल दो ऐसी जनरेशन जब साथ में आती है तो डिफरेंसेस बहुत क्रिएट होते हैं, लेकिन ह्यूमर और फन भी वहीं से क्रिएट होता है. तो मैं जस्ट देखना चाहता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे की जनरेशन को कितना जानते हैं. आजकल एक तो जेनजीज, आई जस्ट गिव यू कपल ऑफ वर्ड्स. अर्शद सर अगर आपको इनका मतलब पता है तो डू यू नो व्हाट डज, मुझे पता है, मुझे इसी काम के लिए बुलाया गया था. बोलो व्हाट डज डिलुलु मीन? मैं एक लुल्लू को जानता हूँ. So you've not heard that Delulu is the only Solulu? What? Delulu is the only Solulu. So delusion is the only solution. उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा. अच्छा, व्हाट इज रिस? This is what, like something like a face. Yes, sir, you've got a lot of risk today, so you're risking the entire audience. Okay, so this is what? Charisma. Charisma. वो है. जो आप में है ऑलरेडी, इसलिए पता करने की जरूरत ही नहीं है. व्हाट इज ड्रिप, अर्शद सर? Somebody in hospital. Drip is like, I'll give you a sentence to try and guess. Your drip is damn good today. That's right. Yeah, I'm getting it. Like, तू ये बता मुझे, ऊँट के मुंह में जीरा.
Oont is on a diet. Correct. नहीं means too little ऊँट के मुंह में जिया Or like we call it like, so it's like it's a starter pack. starter pack Back. That's what we say. अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी चल बात तो ठीक है यार I realize जो मुझे पता है तुझे नहीं पता जो तुझे पता है मुझे नहीं पता है अच्छा मुझे एक मुहावरा अगर बता दो if you know this अपने मुंह मियाँ मिट्टू Sounds a bit wrong. क्या है सर? खुद की तारीफ करना Oh, like self-pleasing. We call it self-pleasing. Lazy? Self-pleasing level 100. Self-raising level 100. Pleasing. तो that one was अगर पढ़ाई लिखाई हर कहावत के अपने अलग वर्जन बना रखे हैं जेंजीज ने अच्छा इस ट्रेलर में शो के फाइनली दो इतने महारथी एक साथ आकर चीजें सॉल्व कर रहे हैं समाधान खोज रहे हैं तो समस्या भी इतनी बड़ी होगी ना वो समस्या जिस शख्स ने क्रिएट की है वो ईरानी वर्ष में पहला कदम रखने जा रहे हैं जेंटलमैन और आते ही सीधे नेगेटिव रोल में घुस गए एकदम एंटी हीरो की तरफ जा चुके हैं आप जानते हैं किसकी बात कर रहा हूं सो लेट्स हियर इट फॉर वेरी ओन द गुड मैन टर्न्ड मार्टिन मिस्टर एक सीन में मुझे कोई बहुत है yeah I'm really excited to be a part of the show and also कि ऐसे किरदार like you also said it कि the good man turned Martin was the bad guy anti-hero जो आपने कहा I was sick of playing गाँव का गरीब boy next door मैंने कहा कि कुछ अलग करके देखते हैं अभी फाइनली सर ने मौका दिया एंड so here I am हाँ मतलब वैसे भी सर के सारे विलन्स हर फिल्म के विलन्स हर कहानी के विलन्स और इस सीरीज के भी विलन के साथ खास बात ये होती है कि आपके दिल में जगह कर जाते हैं वो वी रिमेंबर ईच एंड एवरी एंटी हीरो somehow don't hate them because yes somehow Yeah. it happens तो क्या आपके साथ भी यही होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल और ईरानी वर्स के बारे में जैसे सब जानते हैं कि जो एंटी हीरो भी होता है वो एक पर्पस होता है उसका वो कन्वेंशनल नहीं होते हैं वो जो एंटागनिस्ट आप कहते हैं जो क्लीशे होता है there is always a purpose with all the characters there is a subtext with all the characters वैसे ही मार्टिन के साथ भी है जो चीज़ें नहीं कहनी है वो मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पे बोलते कोई नहीं देखने वाला है मैं आप लोगों के का इंतजार करूंगा कि आप लोग देखें मार्टिन को हमारे शो एंड या there is a lot of meaning in the show and because it's such a relevant topic cybercrime I think हम सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली उसका शिकार बन चुके हैं तो entertaining है शो we are talking about something which is very relevant but you'll also see the human side to a character like Martin so yeah really excited I think the person what I feel, I mean, I may be wrong, but what I see in Raju stories are that it's usually जो हालात होते हैं ना वो विलन होते हैं, जो situations है ना तो वो विलन होते हैं, लोग अक्सर नहीं होते, because अगर आप इसमें भी देखोगे you realize that जिस हालात से ये लोग गुजर रहे हैं ना वो हालात ने इनको ऐसा बनाया है, वो है नहीं वैसे. I think that's a very nice way of looking at things. Very true. Very true. For the Martin, your character, I'm going to ask this question for you. Like, what is that biggest misconception people will have about Martin after watching the trailer of the series? जैसे मैंने अभी कहा उनको लगेगा कि he is like any other antagonist or any other anti-hero but there is a reason why he is what he is and काफी डेप्थ है काफी सबटेक्स्ट है मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं there is a reason there is a purpose and last में hopefully by the time you are done watching all the entire show थोड़ी बहुत empathy मेरे किरदार को मिलेगी hopefully so yeah fingers crossed. सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ any it's a question to all three of you ये जो हैकिंग वाला साइबर क्राइम वाला पूरा इधर मेरे साथ 3-4 बार हुआ है सच में जी मेरा इंस्टाग्राम 2 बार हैक हुआ है मेरा फेसबुक एक आध बार हैक हुआ है मेरी वाइफ के अकाउंट से पैसे 2 बार जा चुके हैं मैंने तो एक ही बार किया था. It's happened और मुझे याद है अभी इनफैक्ट थोड़े दिन पहले मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके फादर के साथ ऐसा हुआ है दैट वाज द टाइम आई गॉट इन टच विद अमित सर एंड अभी आप लोगों ने एक झलक तो देख ली है कि वो किस प्रकार के एक्सपर्ट हैं सो ही हेल्प्ड अस आउट विद दैट तो आसपास वालों के साथ हुआ है मेरे साथ भी हुआ है तो या आई मीन
all the more reason for me to be a part of this show. करेक्ट बिकॉज ये बातें लोगों तक पहुंचे एंड वी कैन बी अवेयर ऑफ सच अ थिंग आप दोनों में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ मेरा है? email में हुआ था एक बार issue and but yes there's a friend of ours who's into this and so I had spoken to him but really this is so scary and आज की तारीख में ये बहुत ही अलग लेवल पे पहुंच गया today you know that I can only trust my eyes I can't trust my eyes it's so difficult and I gosh कुछ ऐसा I think there are people coming out with apps and ways and means to figure out whether it's AI generated not generated fake so I think वो clarity जितनी जल्दी आ जाए ना वो information जितनी जल्दी आ जाए उतना बेहतर है because I think the bad guys are getting smarter and smarter so guys really better way smarter वेरी वेल सर हम सबको जरूरत है इस चीजों के बारे में अवेयर रहने की जान